ओके गाइस, सो अंडरस्टैंड। रोहन, आप भी ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ फिर से। देर आर two kinds of exchange rate. One is a floating exchange rate, and the another one is a fixed exchange rate. Do you remember हमने ये बात की हुई है? Yes, so Okay. A floating exchange rate is when a currency is allowed to fluctuate in a very, very wider band. Okay. Is this clear? Hmm. A fixed exchange rate is a system where a currency is not allowed to fluctuate in a very wider band. करेंसी को ज्यादा हम फ्लक्चुएट नहीं होने देते हैं. ओके, इज दैट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? Yeah. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. So a fixed exchange rate is a system in which a currency is allowed to fluctuate, not fluctuate in a very wider band, which means government, whenever there is a change in a currency, the government would try to manage it. There is a possibility. There is a possibility that the currency can be fixed by the government. Do you understand the difference? Last 5 years, the exchange rate between yuan, Chinese yuan, and USD has been relatively the same. If you see, on 5th October 2019, it was 7.14. Today, on 4th October, it is 7.02. So the currency has been relatively being fixed. The currency is allowed to fluctuate, but in a very narrow band. Do you see, it is always nearing to 7. It is always nearing to 7. Not much major fluctuations. Absolutely. Because the Chinese have fixed Chinese yuan against American dollar. Yeah. Okay. They've actually fixed it. That's point number one. So how do you fix a currency? Any idea? How do you fix a currency? One value. You can be as stupid as you guys can. I want आप जल्दी से जल्दी इस चीज को समझे. कैसे फिक्स करते हैं एक्सचेंज किसी भी करेंसी? It's okay even if the answers are wrong. Be like a certain value for the currency. Okay, so let's say government has decided that we are going to give, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो है 1 USD के बदले में 7 चाइनीज युआन दे देंगे. ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया. नाउ द पॉइंट इज 7 हैज टू बी, जो ये 7 वाला फिगर है ये प्री डिसाइडेड तो नहीं होगा, कुछ कैलकुलेशंस के बाद आया होगा. करेक्ट. Yeah. There could have been a scenario that इन्होंने, ये हो सकता है 1 USD को 3 चाइनीज युआन किया हो, या 1 USD को 11 चाइनीज युआन किया हो, बट दे फाइनली चूज के नहीं 7 ही रखते हैं. करेक्ट. तो आप अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू भी कर सकते हैं, ओवर वैल्यू भी कर सकते हैं. ओके, अंडर वैल्यू का मतलब है आपने बहुत सस्ता किया हुआ है. ओवर वैल्यू का मतलब है आपने बहुत अपनी करेंसी को महंगा किया हुआ है. इज दिस मेकिंग सेंस? समझ आ रही है? Yeah. रोहन, समझ में आ रहा है? करेंसी को हम महंगा भी रख सकते हैं, ओवर वैल्यू कहते हैं. करेंसी को हम सस्ता भी रख सकते हैं, अंडर वैल्यू कहते हैं. yes, so ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू वाला सिस्टम है, जो करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जैसे वर्ड्स है ना, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आते हैं, सॉरी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आते हैं. एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन. और Yeah. करेंसी रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन किस में आएगा? फिक्स्ड एक्सचेंज. इज दिस क्लियर? Yeah. ठीक है, इसमें कोई भी बेसिक सा भी डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट का जो डायग्राम है बहुत सिंपल बनेंगे.
exchange rate में diagram. Yeah, I want you to imagine currency as a Commodity. commodity. Okay, so the currency, like you go and buy mangoes out in the market, you can buy currency in the market. Okay, if the demand for mangoes goes down, the price of mango will go down. Correct? Similarly, you can go out in the market and you can buy dollars. There is a possibility that the demand for dollars also going down. So you will show in a similar graph like this. Correct? Yeah. रोहन क्लियर है? यस सर। सिमिलरली क्या डिमांड बढ़ सकती है यूएस डॉलर की इंडिया में? हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है, तो हम डिमांड को राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे। करेंसी इज लाइक अ कमोडिटी, बस आपने सबसे पहले ये चीज को ध्यान रखा। अब ये आपने दिखा दिया, ये करेंसी डिप्रिशिएट हुई है और यहाँ करेंसी एप्रिशिएट हुई है क्योंकि करेंसी की डिमांड बढ़ गई है। क्या मैं डिप्रिसिएशन का एक और डायग्राम भी बना सकता हूँ? मुझे प्राइस को ही तो नहीं चलाना है, करेंसी डिप्रिशिएट हुई है। हाउ वेल मैं सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट करूं। तो करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी रोहन। किसी भी चीज की मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाएगी तो वो डिप्रिशिएट हो जाएगी। यस और नो? Yeah. तो ये भी डिप्रिशिएट का डायग्राम हो सकता है, डिमांड लेफ्ट वर्ड और सप्लाई राइट वर्ड्स। आर यू देयर रोहन? रोहन आर यू देयर? यस सर। हाँ, ओके। अब आ जाते हैं एक और डायग्राम पे जो कि एक्सचेंज रेट का ही एप्रिसिएशन है। तो सप्लाई का लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं हम। किसी चीज की मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा ना। So these are the 4 diagrams. Remember that you are going to be making it in floating exchange rate. All the 4 diagrams. Is this clear? अभी तक मैंने फिक्स आपको कोई भी चीज नहीं बताई है। Is this clear? I understood. यस अब फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होगा? गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, कि हम अपनी करेंसी को, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि अब हम 1 रुपए के अगेंस्ट में 1 यूएस डॉलर देंगे। ऐसा हो सकता है, राइट? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। लेट्स से हाइपोथेटिकली लिख लेते हैं ना, हाइपोथेटिकली लिख लेते हैं प्राइस ऑफ यूएसडी इन आईएनआर। ये यूएसडी का प्राइस है लेकिन आईएनआर में है। तो लेट्स से हमने लिखा ये 1 प्राइस है और 1 क्वांटिटी है। $1 1 रुपए के बराबर है। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब डू यू रिमेम्बर माई स्टेटमेंट के जिस कंट्री की गुड्स की डिमांड बढ़ती है एक्चुअली में हम उस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हैं। अगर हम अमेरिकन गुड्स प्रेफर कर रहे हैं डॉलर्स डिमांड बढ़े। तो हम एक्चुअली में डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हैं। ये बात याद है रोहन, मैंने बोली थी? यस या अब मान के चलते हैं किसी वजह से अमेरिकन्स इंडियन गुड्स को खरीदना बंद कर दे, लेट्स से, ये तो पॉसिबल है। डिमांड, ये तो पॉसिबल है, डिमांड नीचे जा सकती है। ये रिपीट व्हाट यू सेड, आई डिडंट हियर। Let's say, what if Americans stop buying goods from India? The demand for Indian goods goes down. In a way, the demand for dollar goes down.
Yeah. So ideally, let's say hypothetically, this rate in the market, let's say, is 0.85. Okay. Now, I'm just saying, don't you think there'll be a lot of pressure on the government? गवर्नमेंट ने तो करेंसी को फिक्स किया हुआ है, गवर्नमेंट को तो वापस इसी पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, वापस डिमांड को यहाँ पे लेके आना है, करेक्ट? हाँ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? व्हाट विल इंडियन गवर्नमेंट डू? देयर इज नो डिमांड फॉर इंडियन रुपी. When Americans are not buying goods from India, that means there is no demand for Indian rupee. तो अब इंडियन रुपी की डिमांड बहुत कम होती जा रही है एक तरह से, 0.85 पे आ गए, लेकिन हमें 0.85 तो रखना नहीं है, हम तो 1 on 1 डिसाइड करके बैठे हुए हैं एज ए गवर्नमेंट, हमने तो फिक्स किया हुआ है. तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए? व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू ब्रिंग दिस डिमांड बैक ओवर हियर? Stop buying American goods. स्टॉप बाइंग अमेरिकन गुड इज वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, करेंसी को क्या कर सकते हैं हम? गाइस, ये बहुत आसान है. करेंसी को क्या कर सकते हैं? reevaluation, like increase. Appreciated. छोटा सा एग्जांपल दो. डिमांड फॉर इंडियन रुपीज हैज गॉन डाउन, डू यू एग्री? करेक्ट. Yeah. डिमांड फॉर इंडियन रुपीज की डिमांड को वापस ऊपर बढ़ाना है. Hmm. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? शुड इट क्रिएट scarcity of INR from the market? I जिस think. जिस चीज की स्केर्सिटी हो जाती है मार्केट में, उसका प्राइस बढ़ जाता है कि नहीं? Hmm. So Indian government will start buying its own Indian rupee from the market. डॉलर लेके रुपीस को खरीदना शुरू कर देते हैं. इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस को खरीदा जाता है. कैसे खरीदा जाता है? जितने भी दूसरे कंट्रीज के पास पैसा होगा इंडियन रुपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? वी वांट टू बाय रुपी एंड इन रिटर्न वी आर रेडी टू गिव यू we want to buy US dollar and in return we want to give you Indian rupee. Do you understand मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं? Give an example. No. I think. रोहन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. लेट्स से इंडियन रुपीस की मार्केट में डिमांड तो है ही नहीं अब, क्योंकि इंडियन गुड्स की डिमांड नहीं, अब ये डिमांड को ऊपर लाना है. एंड लेट्स से अब इंडियन रुपीस की डिमांड कैसे क्रिएट की जाए? शुड वी मेक इंडियन रुपीस मोर स्केर्स फ्रॉम द मार्केट? No. Sorry. नो और यस? No. Yes, sir. या जिस चीज की मार्केट में स्केर्सिटी होगी शिवानी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? विल दिस प्राइस गो बैक फ्रॉम हेयर टू हेयर? आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू शिवानी वन थिंग. जिस चीज की मार्केट में स्केर्सिटी क्रिएट हो जाती है, क्या उसका प्राइस बढ़ जाता है? Hmm. बस. अब इंडियन रुपीस की स्केर्सिटी क्रिएट कर दे मार्केट में, उसको ऊपर लाने के लिए. Hmm. करेक्ट. अब इंडियन रुपीस की स्केर्सिटी कैसे क्रिएट करेंगे? डॉलर सप्लाई करके. गवर्नमेंट विल बाय इट्स ओन INR and supply USD against it. USD के थ्रू INR को खरीद लो, INR की मार्केट में स्केर्सिटी पैदा कर दो. मार्केट में होगा ही नहीं INR, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी धीरे धीरे. Hmm. सिंपल. कीप इट वेरी सिंपल. मेमोराइज इट इफ इट ऑल इट नीड्स टू बी. एग्जाम के लिए फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए जिस करेंसी की डिमांड कम होती है, उसकी स्केर्सिटी क्रिएट कर दो.
अगर इस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती तो रूहान क्या करते? अगर क्या सर? अगर इसी करेंसी की डिमांड ज्यादा हो जाती, अगर ये करेंसी 1:1 हमने डिसाइड किया था, हाँ। अब लेट्स से इंडियन करेंसी ओवर सप्लाइड है मार्केट में, हम्म। तो प्राइस कम हो जाएगा। हाँ। यहां से यहां आ गए, नीचे आ गए, हाँ। और हमें वापस सप्लाई कर्व को ऊपर लेके जाना है। Let the supply. सप्लाई को कम कर दें, स्केर्सिटी क्रिएट कर दें फिर से मार्केट में। यस। दोनों ही केसेस में शिवानी प्राइसेस नीचे आ गया था। डू यू अग्री? हम्म, ये प्राइस नीचे आ गया और ये प्राइस नीचे आ गया। हाँ। दोनों ही केस प्राइस को ऊपर लेके जाना है ना। हम्म। प्राइस को ऊपर कैसे करते हैं? किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे कम करते हैं हम? कैसे Very. बढ़ाते हैं? उसकी स्केर्सिटी क्रिएट करके। Yeah. सिंपल है, करेक्ट ना? हम्म। यही याद रखना है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में करेंसी बाय एंड सेल करती है गवर्नमेंट टू मेंटेन इट। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या हो रहा होता है? ये Supply. ये अपने आप हो रहा होता है, ये अपने आप हो रहा होता है। इज दिस मेकिंग सेंस? या। Yeah. हैव अ लुक एट दिस, दोनों की डेफिनेशन। एडवांटेज क्या है? डोंट यू थिंक फिक्स एक्सचेंज रेट में बहुत स्टेबिलिटी होगी? if Rohan is buying goods from India and Shivani is selling goods from India, रोहान यूएस में बैठा है, रोहान को बहुत इजी नहीं होगा कैलकुलेट करना कि कितने रुपए में कितने गुड्स खरीद लूंगा इफ ही इज बाइंग गुड्स फ्रॉम शिवानी फ्रॉम इंडिया। तो डोंट यू थिंक इट्स वेरी स्टेबल? बिल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिस्क नहीं होगा कुछ, राइट और रॉन्ग? Right. रोहन, यस सर। लेट्स से शिवानी ने बिजनेस शुरू किया एनवायरमेंटली फ्रेंडली कटलरी का इंडिया में, और वो वेबसाइट पे सेंड करती है, वो जो रेस्टोरेंट में बॉक्सेस यूज होते हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स, एंड यू आर इन यूएस, यू वांट टू सप्लाई टू यूएस रेस्टोरेंट्स। लेट्स से यू आर अ बायर इन यूएस, और या। आप इसको बोलते हो मैं 1 लाख पीसेस खरीद लूंगा हर महीने आपसे शिवानी। तो अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा, इजंट इट वेरी इजी फॉर शिवानी एंड यू टू कैलकुलेट योर कॉस्टिंग? Yeah. क्योंकि बार बार एक्सचेंज रेट अगर फ्लक्चुएट होगा तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट? Yeah. और Yeah. बिकॉज Yeah. बिकॉज द एक्सचेंज रेट इज स्टेबल, तो इसमें महंगाई भी नहीं आएगी, इन्फ्लेशन ही नहीं आएगा, बिकॉज यू फिक्स्ड इट। इन्फ्लेशन का डर नहीं होगा ना। देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। एंड डोंट यू थिंक अगर आप कोई बिजनेस प्लान खोलने वाले हो, लेट्स से रोहन कोई और बिजनेस खोलना चाहता है या शिवानी कोई और बिजनेस खोलना चाहती है और इंटरनेशनल पेमेंट्स आनी है, डोंट यू थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू टू प्रिडिक्ट your business plan, because you can easily plan your long term investments because you know the exchange rate. There is nothing uncertain. अभी इंडियन रुपीज और डॉलर में बहुत अनसर्टेनिटी है। लेट्स से रूहान इंडिया से पढ़ने चला गया यूएस, और उसके मम्मी पापा हर महीने उसको $1,000 बेचते हैं। आज $1,000 कितने रुपए के आएंगे? 83,000 रुपीज के आएंगे। 83 रुपीज का $1 है, करेक्ट? करेक्ट, यस और नो? यार ऐसे चुप मत रहो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। Yeah. He left. He left the call. सॉरी? He left the call. if your parents were to send money to you, Hmm. 84 84 होते हैं,
84,000 पड़ते हैं उनको। Hmm. अब लेट्स से फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, ये 100 हो जाएगा, तो आपके पेरेंट्स को 1 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे ना, 16,000 रुपीज मोर। Overvalued. नहीं 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 नहीं, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ये फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट करो। Mm-hmm. ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यूड से वर्ड यूज होंगे फिक्स एक्सचेंज रेट में, फ्लोटिंग में नहीं। अभी मैं फ्लोटिंग की बात कर रहा हूँ शिवानी, Okay. अभी मैं फ्लोटिंग की बात कर रहा हूँ। Okay. Okay. आपके पेरेंट्स को ज्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे आज। लेट्स से उन्होंने आज आपको 1000 यूएसडी भेजने हैं, आप अमेरिका में पढ़ते हो, एक यूएसडी 84 का है, तो उनको 84,000 भेजने पड़ेंगे ना यहाँ से। बट अगर कल सुबह अगर ये 100 रुपये हो गया तो उनको 1 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे, Mm-hmm. तो उनको 16,000 भेजने ज्यादा पड़ रहे हैं ना। तो कोई प्रिडिक्टिव, कोई कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी है। तो वो ये कह रहा है, दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू। Yeah. Can you send me a screenshot of that? I will send you the entire table. I will send you the screenshot. I will upload it over here. Can you quickly read this for me and let me know if you still have some problem? Yeah. What's vulnerability to speculative attacks? Vulnerable is too easy a target. Too easy target. So the first disadvantage, are they saying that that the central bank might find it difficult to maintain it? Yeah. So it will be very difficult to maintain it if at all it is fluctuating, isn't it? Mm-hmm. No, in the fixed exchange rate, I mean, not the floating. Yeah. Yeah, I got it. Hmm. I'm reading. You're done reading? Yeah. Okay, so you've got a clear understanding of what floating versus fixed is, right? Yep. Yeah. Advantages and disadvantages both. I don't like it.